Hello everyone, welcome to our next video of chapter 8 Redox with balancing redox reactions. In your class 10th, you have already studied balancing using hit and trial method. In this chapter, we will use two different methods to balance redox reactions, that is oxidation number method and ion electron method. Let us start ion electron method, which is also named as half reaction method. The first step for the balancing is to write oxidation number for every element. Watch our previous video to learn writing oxidation number for every element of a chemical reaction. As we know that increase in oxidation number is oxidation and decrease in oxidation number is reduction. So we divide the chemical reaction in two halves on the basis of oxidation and reduction. The reaction in which oxidation is taking place is known as oxidation half reaction, and the another one where reduction is taking place is considered as reduction half reaction. The next step is balancing main element using hit and trial method. As we know that the reaction is disproportionation type of redox reaction because here only single element is getting oxidized as well as reduced. Therefore, phosphorus, whose oxidation number is being changed during the process, is considered as main element, and we balance this phosphorus using hit and trial method. That is, we take required number of molecules to balance the number of atoms present in the reaction. In our next step, we balance oxygen by adding water in required amount at required direction. As you can see that in our first reaction, no any oxygen is present either in reactant or product side. Therefore, no changes will be done. In the second reaction, we are having 8 oxygens in product side. Therefore, we add 8 water molecules in the reactant side so that number of oxygen atoms should be balanced in reactant as well as in product side. Now balance hydrogen in the same manner, that is in required amount at the required direction. You can see that in our first reaction 12 hydrogens are present in product side, so we add 12 H plus ions in the reactant side to balance both the sides of the reaction. Similarly, in the second one, 16 hydrogens are present in the reactant side, whereas only 4 hydrogens are there in product side. Take the difference, which is 12. Now we add 12 H plus ions in the product side to balance hydrogen atoms in both the directions of this reaction. In our next step, we calculate the charges for every component of the reaction. In our reaction, to calculate the charge, we have to multiply the number of molecules with the charge of a single molecule of the given component. For example, one phosphorus molecule is given in the first reaction without any charge. Therefore, 1 multiplied by 0, that is 0 charge for phosphorus. Similarly, the H plus ion is having plus 1 charge and 12 molecules are there. So by multiplying 12 with plus 1,
that is plus 12. Therefore, plus 12 is the charge for hydrogen ions in this reaction. Similarly, we have to calculate charges for all the components for both the reactions. Then, balance charge by adding electrons in required amount and at required direction. To balance the charge in a chemical reaction, we have to add electrons in the direction of maximum charge. So, in first reaction, we can see that in reactant side there is plus 12 charge, whereas in product side the charge is 0. So, we have to add 12 electrons in the reactant side so that charges become equal in both the directions of the reaction. And in the second reaction, the charges in the product side is greater than the reactant side. Therefore, equal to the difference in charge, that is 8, we have to add 8 electrons in the product side to balance the charge. Now, number of electrons in both the reactions are different. So, to make them equal to each other, we have to cross multiply both the reactions. We can also multiply the number of electrons with some number to make them equal. For example, we can multiply the reaction having 12 electrons by 2 and the reaction having 8 electrons by 3 so that number of electrons become equal in both the equations. Now we add both the reactions. That means the reactants of both reactions should be added. Similarly, the products of both reactions should be added with each other. For this, we just write all the reactants using plus sign, and after the arrow we write all the products using plus sign. Cut the common things present in reactant and product side. Like if the reactant is having 24 electron and product is having the same number of electron, we can cut them. Similarly, 24 hydrogen ions are present in reactant and 36 hydrogen ions are present in product. So we can cut them and write the remaining 12 hydrogen ions in the product side. You can see that no any other component is similar in reactant and product side. So we rewrite the remaining reaction as well. Similarly, we can also add 2p4 and 3p4 to make 5p4 because they are same in the reactant side. Now the reaction has been balanced for the acidic medium. But for basic medium, after balancing up to here, we have to follow few more steps. Now we'll discuss about the remaining steps which are only used if the reaction is given in basic medium. First of all, we add OH minus ions in reactant and product side equal to the number of H plus ions present in the reaction. You can see that 12 H plus ions are present in product side. So we add 12 OH minus ion in both the sides of the reaction. Now add H plus and OH ions if both are present in same side. Means in product side H plus and OH minus ions both are given. We can add them to make 12 molecules of water. But in reactant side only OH minus ions are given. So we will not add them to convert in water. Cut the common again as we have done in the acidic part.
24 H2O should be cutted by 12 H2O and 12 H2O remains in the reactant side. Now at last we count the atoms and the charges in the reactant and product side. You can see that reactants and products both are having 20 phosphorus, 36 hydrogen and 24 oxygens. Now the charges. In reactant side, minus 12 charges are there. Similarly, in the product side, we have minus 12 charge. That means charges are similar in reactant and product side. Therefore, reaction is balanced for basic medium. हेलो एवरीवन, अभी आपने देखा कि हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इन स्टेप्स में आपने देखा कि हमने रिएक्शन को 2 हाफ्स में डिवाइड किया था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसीलिए इस मेथड को हाफ रिएक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। सो वी कैन से द बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, because we are dividing the reaction in 2 halves during the balancing. आपने जिस इक्वेशन को स्टेप्स के साथ समझा था, हम उसी इक्वेशन को दोबारा यहाँ बैलेंस करेंगे एक साथ सारे पॉइंट्स को यूज करते हुए। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी। और उसके बाद हम कुछ और रिएक्शंस को भी इसी मेथड से बैलेंस करेंगे। So let us discuss first the previous reaction which we have already discussed earlier. P4 plus OH minus gives PH3 plus HPO2 minus. ये वही रिएक्शन है जिसे हमने स्टेप्स के साथ समझा था। अब हम एक साथ सारे स्टेप्स यहाँ फॉलो करेंगे, रिपीट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला स्टेप हमने बोला था राइट ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो सबसे पहले सभी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। प्योर एलिमेंट 0, O-2, H+1। ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालना आपने पहले वीडियो में सीखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालेंगे। P-3, H+1, H+1 +2 for phosphorus and -2 for oxygen। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद स्टेप 2 आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन, ये आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एज वी नो दैट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज oxidation, whereas decrease in oxidation number is reduction. In this reaction we observe that the single element is getting oxidized as well as reduced. That means this is an example of disproportionation reaction. एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है, डिसप्रपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हुई। अब यहाँ पर हम इन दोनों रिएक्शंस को 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे, 2 अलग अलग हाफ रिएक्शंस बनाएंगे। पहली ऑक्सीडेशन के लिए जिसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे, और दूसरी रिडक्शन के लिए जिसे रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे। सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड हियर आई राइट रिडक्शन हाफ रिएक्शन। मैं 2 अलग अलग रिएक्शंस को यहाँ लिखूंगी और उन्हें हम बैलेंस करेंगे। सो ऑक्सीडेशन, देखिए इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है, हमने ऑक्सीडेशन में एरो बनाई है। तो P4 से एरो स्टार्ट होता है और HPO2 पे फिनिश होता है, तो हम इसे लिखेंगे P4 gives HPO2 माइनस। एरो की टेल से लेकर एरो के हेड तक हमें लिखना है, बीच में लिखी हुई कोई भी चीज को हमें इंक्लूड नहीं करना है।
So I have written P4 gives HPO2 minus. Similarly for the reduction. Reduction की एरो देखिए, P4 से स्टार्ट होकर PH3 तक जाता है. So I'll write P4 gives PH3. एरो की टेल से एरो का है, बीच में लिखी हुई कोई भी चीज इंक्लूड नहीं होगी. Now this is the third step. We have divided the reaction into two halves. Now the fourth step, balance main element. What do you mean by the main element over here? The element whose oxidation number is being changed during the process is considered as main element. वो एलिमेंट जिसका रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसी को हम मेन एलिमेंट कहते हैं. इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में फॉस्फोरस 0 और यहाँ फॉस्फोरस +2 है. रिमेनिंग का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट के जैसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ. और यहाँ फॉस्फोरस 0 और फॉस्फोरस -3. हाइड्रोजन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ही ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, यानी मेन एलिमेंट हुआ फॉस्फोरस. इस एलिमेंट को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे. हिट एंड ट्रायल मेथड आपने क्लास 10th में बैलेंसिंग इक्वेशन में समझा था, यानी जितने हमें मॉलिक्यूल्स चाहिए, जितने हमें एटम्स चाहिए, हम उनको यहाँ ऐड कर देते हैं. सपोज यहाँ पर P4 यानी 4 एटम से बना मॉलिक्यूल है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें एक ही फॉस्फोरस एटम है, तो हम इसके आगे 4 लिख देते हैं ताकि 4 मॉलिक्यूल्स बनने से हमारे पास फॉस्फोरस के 4 एटम्स आ जाएंगे. वी कांट इंक्रीज द नंबर ऑफ एटम्स, वी कैन ओनली इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. So we can write the multiple numbers for molecule to increase the number of atoms. 4 phosphorus atoms लाने के लिए हमने 4 molecule HPO2 यूज किया. अब दोनों तरफ phosphorus के numbers equal हो गए. Now here again P4 which gives 1 phosphorus in product. So we can write 4 over here to balance the phosphorus atoms. Now the next step. Next step is balance oxygen by adding water molecules in required amount at required direction. क्या मतलब होता है required amount और required direction का? जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए उतना ही मॉलिक्यूल्स वाटर का डालना रिक्वायर्ड अमाउंट हुआ. जिस डायरेक्शन में चाहिए, यानी कि पहले से जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन डालेंगे ताकि दोनों ही साइड्स में ऑक्सीजन के नंबर्स इक्वल हो जाए. तो यहाँ देखें, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास 8 ऑक्सीजन है. 2 एटम्स मल्टीप्लाइड बाय 4 मॉलिक्यूल्स, दैट इज 8 ऑक्सीजन एटम्स. रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं है, प्रोडक्ट में 8 ऑक्सीजन्स हैं. दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए हमें रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारी रिक्वायर्ड डायरेक्शन हुई रिएक्टेंट साइड. कितने ऑक्सीजन चाहिए? प्रोडक्ट में जितने हैं. प्रोडक्ट में 8 ऑक्सीजन है, तो हम रिएक्टेंट में भी 8 ऑक्सीजन्स डालेंगे. सो इन नेक्स्ट स्टेप वी राइट P4 plus 8 water molecules which gives 4 HPO2 माइनस. अब आप चेक कर सकते हैं, रिएक्टेंट में 8 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी 8 ऑक्सीजन है, जबकि सेकेंड रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ही ऑक्सीजन नहीं है. तो हम इसे रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे विदाउट एनी चेंज. हमने कोई चेंज नहीं किया है बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट देयर. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H+ आयन. हाइड्रोजन्स को बैलेंस करना है इन रिक्वायर्ड अमाउंट एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन. वही मीनिंग हुआ, जितने हाइड्रोजन चाहिए वो रिक्वायर्ड अमाउंट और जिस डायरेक्शन में हमें डालना है वो रिक्वायर्ड डायरेक्शन.
हम उसी डायरेक्शन में डालेंगे जहाँ हाइड्रोजन कम है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा वाली साइड में डाला तो और ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर द लास्ट इक्वेशन। हम पहले वाली रिएक्शन को नहीं देखेंगे बिकॉज वी हैव डन ऑलरेडी फ्यू चेंजेस ओवर हियर। सो कंसिडर द लास्ट वन, जो हमने लास्ट लिखी है उसी को कंसिडर करेंगे एंड वी विल काउंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। In reactant side we are having 8 to the 16 hydrogen. 2 atoms in every molecule and 8 molecules are there. So total 16 hydrogens are there. And in product side only 4 hydrogens are there. How many hydrogens we require in product side to balance the equation? 12 hydrogen. 16 minus 4. That is 12 hydrogens are required. Reactant में 16 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन, हम लेस कर देंगे, हमें मिल जाएगा 12। यानी कि प्रोडक्ट साइड में 12 हाइड्रोजन हम ऐड करें तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस करने में हाइड्रोजन के लिए हम हाइड्रोजन आयंस ऐड करते हैं, H+ आयंस। So let's write the reaction. P4 plus 8H2O gives 4HPO2 minus plus 12H+ ions. अब काउंट करें, रिएक्टेंट में 16 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में 12 plus 4 16 हाइड्रोजन। Now hydrogens are balanced in both the directions. Similarly for the next one, reactant is not having any hydrogen. Reactant में कोई हाइड्रोजन नहीं है। Product is having 12 hydrogen. 4 3s are 12. So total 12 hydrogens should be added in reactant side to balance the reaction. Reactant side में हम 12 हाइड्रोजन आयंस डालेंगे ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम हो जाए। हमने ऐड कर दिया, देखिए अब रिएक्टेंट में 12 हाइड्रोजन आयंस और प्रोडक्ट में भी 12 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम फिर से देखें, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखा है, फिर आइडेंटिफाई किया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पर हमने 2 हाफ रिएक्शंस बनाई है। उसके बाद पहले स्टेप में मेन एलिमेंट को बैलेंस किया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है हिट एंड ट्रायल मेथड से। फिर हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया है जिसमें ऑक्सीजन इक्वल करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए, और फिर हमने हाइड्रोजन बैलेंस किया जिसके लिए हमने H+ आयंस ऐड किए थे। तो आइए हम अगला स्टेप करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है बैलेंस चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। चार्जेस बैलेंस करने के लिए पहले हमें चार्जेस पता होने चाहिए। तो चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ऊपर लिखा गया चार्ज होता है, अगर प्लस लिखा है तो पॉजिटिव, माइनस लिखा है तो नेगेटिव, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो न्यूट्रल चार्ज होता है। ये चार्ज एक मॉलिक्यूल के लिए है, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उससे ये मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ देखें हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ P4 विदाउट एनी चार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं लगा है, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज 0 चार्ज। चार्ज कैलकुलेट करने के लिए ऊपर लिखे पावर में लिखे हुए चार्ज को आगे लिखे हुए नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन हियर वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सो 0 चार्ज, और 8 मॉलिक्यूल्स, अगर 1 मॉलिक्यूल में 0 चार्ज है तो 8 मॉलिक्यूल्स भी 0 ही रहेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 0 चार्ज। हियर फॉर 1 मॉलिक्यूल -1 चार्ज है, पावर में -1 है, ये इसका चार्ज हुआ। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 4। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 -4 चार्ज हुआ हमारा HPO2 माइनस के लिए। हाइड्रोजन आयंस, every ion is having 1 charge +1
and 12 ions are there. So 12 multiplied by 1 that is plus 12. ये हमारे चार्जेस हुए. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के चार्जेस का सम करेंगे तभी हम दोनों तरफ इक्वल चार्जेस ला पाएंगे. सो फॉर द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इनका सम करेंगे और इनका भी टोटल लगाएंगे तो हमें क्या मिला? वी गेट 8 प्लस 8 एंड 0. हमने दोनों अलग अलग टोटल लगाया चार्जेस के लिए. 0 प्लस 0 इज ऑलवेज 0 बट -4 एंड प्लस 12 वी गेट प्लस 8. अब इससे क्या करेंगे? हमें चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन डालकर. इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, माइनस. यानी हम जिस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उस तरफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. अगर मैं इस जीरो वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डालती हूँ तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा जिससे दोनों के बीच का गैप और बढ़ जाएगा. हमें दोनों को इक्वल करना है तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में डालते हैं जहाँ चार्ज ज़्यादा होता है या हम कह सकते हैं पॉजिटिव साइड में होता है. यहाँ 0 और प्लस 8. अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्लस 8 वाली डायरेक्शन में डालूंगी तो ये इस चार्ज को कम कर देगा. देखें कैसे? P4 plus 8H2O gives 4HPO2 minus plus 12H plus कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे? जितना चार्ज हमें चाहिए. जितनी टोटल यहाँ आई है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे. सो विल ऐड 8 इलेक्ट्रॉन्स. 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने डाल दिया. फिर से चार्ज काउंट करें. 0 0 -4 प्लस 12 -8. 8 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन इज हैविंग -1 चार्ज. सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैव -8 चार्ज. Let us total. It is 0. It is also 0. जरूरी नहीं है कि रिएक्शन की एंड में चार्जेस 0 हो जाए, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में इक्वल चार्जेस होने चाहिए. अगर एक तरफ 0 है तो दूसरा भी 0 हो. इधर -2 है तो यहाँ भी -2 होना चाहिए. रिएक्टेंट +4 है तो प्रोडक्ट भी +4 होना चाहिए. दैट मीन्स बोथ मस्ट बी इक्वल. Now let us continue the same for the next reaction. P4 charge is 0 because power is 0. So 0 multiplied by 1 molecule, that is 0. 12H plus. It is plus 12. Hydrogen 12 multiplied by plus 1 of the power. Again power is neutral. Multiplied by 4, that is 0. Add reactant and product. Product is single so remains same and reactant is total plus 12. 0 और 12 में मैक्सिमम कौन सा है? 12. तो हम इस डायरेक्शन में यानी रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे. P4 plus 12H plus 12 इलेक्ट्रॉन. जितना टोटल आया है उतने ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे. Then 4 PH3. काउंट करें. 0 plus 12 minus 12 and 0. Reactant is 0 and product is also 0. That means both the directions having equal number of charges. एक बात यहाँ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक रिएक्शन में यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में ऐड किया है तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में ऐड होगा. ये दोनों हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होते हैं. अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में है तो सेकंड में प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन जाएगा. अगर आपका इलेक्ट्रॉन सही डायरेक्शंस में है तो आप अब तक सही इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं.
नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया, मेन एलिमेंट बैलेंस किया, हाइड्रोजन बैलेंस किया और अब चार्जेस बैलेंस कर दिए। चार्जेस तो हमने डाल दिए। अब हमें दोनों इक्वेशन के चार्जेस को इक्वल करना है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन इसमें डाले हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन डाले हैं हमने रिडक्शन साइड में और ऑक्सीडेशन साइड में, उनके नंबर्स को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमने कितने इलेक्ट्रॉन डाले हैं? 12 और यहाँ 8। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें नंबर्स से तो हमारी ये रिएक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 से और ये रिएक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 से। We can also take the least number or least ratio for these numbers. हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, 8 multiplied by some number must be equal to the 12 multiplied by some number. क्या किया हमने? हमने 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिखा, 12 इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिखा और ऐसे नंबर से इसे मल्टीप्लाई करें कि दोनों साइड इक्वल नंबर्स आ जाएं। तो देखें 12 1 जा 12, 8 की टेबल में 12 आता है? नहीं, तो हम इससे बैलेंस नहीं कर सकते। देन 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। क्या 8 की टेबल में 24 आता है? यस। कहाँ आता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो अब देखें, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24। यानी अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी दोनों डायरेक्शंस इक्वल हो सकती है। तो अब हम इन्हीं नंबर्स को यूज करेंगे अपने मल्टीप्लिकेशन में, इन स्पाइट ऑफ 8 एंड 12। ऐसा क्यों? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 और 12 को यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि 8 और 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे नंबर्स बहुत बड़े आते और हमें हमारी रिएक्शन का सिंपलेस्ट रेशियो नहीं मिलता। तो अब हम अपनी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इन नंबर्स का 2 और 3 का यूज करेंगे। जिस डायरेक्शन में हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और जिस डायरेक्शन में 8 इलेक्ट्रॉन है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस तरह से दोनों ही रिएक्शंस में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। सो लेट अस मल्टीप्लाई द 12 इलेक्ट्रॉन बाय 2 एंड 8 इलेक्ट्रॉन बाय 3। ओनली इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, we will multiply the whole reaction. Now let us understand how reaction is being multiplied. तो अब हम हमारी रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे उन्हीं नंबर्स से जिनसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो सकते हैं। यानी 12 इलेक्ट्रॉन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इलेक्ट्रॉन के साथ पूरी रिएक्शन मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ। 12 2 जा 24 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यानी पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 8 जा 24। हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन करना है लेकिन मल्टीप्लाई पूरी रिएक्शन होगी। अब कैसे मल्टीप्लाई होता है? जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें इन नंबर से 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। P4 1 molecule, so 1 multiplied by 3, 3P4 plus 8 3s are 24 H2O gives 12 HPO2 minus plus 12 3s are 36 H plus and 24 electron। सारे नंबर्स को, सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इन सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। P4 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 2P4 प्लस
24H plus 24 electron which gives us 8PH3. 4 to the 8PH3. ये हमारी रिएक्शंस मल्टीप्लाई हो गई जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों रिएक्शन में सिमिलर हो गए. नाउ लेट्स ऐड बोथ द रिएक्शंस. कैसे ऐड करेंगे हम दोनों रिएक्शंस को? इट्स वेरी सिंपल. वी जस्ट हैव टू राइट रिएक्टेंट्स along with plus sign and products with plus sign. Look how. We first of all write all the reactants P4 plus 24H2O. Only two reactants are here. I have noted down. अब इसमें और कोई रिएक्टेंट नहीं है तो हम लिखेंगे दूसरी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को प्लस के साथ 2P4 plus 24H plus 24 इलेक्ट्रॉन. हमने दोनों ही रिएक्शंस के रिएक्टेंट्स को प्लस लगाकर लिख दिया है. ये हो गए ऐड. अब हम एरो बनाएंगे और सारे प्रोडक्ट्स को हम लिख देंगे प्लस साइन के साथ. पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स लिखते हैं. 12HPO2 माइनस प्लस 36H प्लस 24 इलेक्ट्रॉन प्लस 8PH3. हमारे पास रिएक्टेंट में 3 प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है तो हमने उसे लिख लिया. नाउ वी हैव ऑलरेडी एडेड बोथ द रिएक्शंस. नाउ वी ऐड एनी मॉलिक्यूल इफ इट इज सिमिलर. अगर कोई मॉलिक्यूल सिमिलर है तो उसे भी हम ऐड करेंगे. लेकिन अब एडिशन रिएक्टेंट का रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट साइड में ही होगा. तो देखिए रिएक्टेंट में P4 और P4 सेम मॉलिक्यूल्स हैं. हम इन्हें ऐड कर सकते हैं. 3 + 2 दैट इज 5P4. और कोई भी चीज हमारी रिएक्शन में नहीं है जो सिमिलर हो रिएक्टेंट से रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में. तो हम बाकी पूरी रिएक्शन को रीराइट करेंगे. हम दोबारा लिख लेंगे एज इट इज. हमने पूरी रिएक्शन को लिख लिया है, सिर्फ P4 को हमने ऐड कर दिया है. अब कट द कॉमन. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चीजें कॉमन है उन्हें कट करेंगे. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जिसे हमने ऑलरेडी बैलेंस किया ही था तो वी कैन कट द 24 इलेक्ट्रॉन बाय 24 इलेक्ट्रॉन. क्या और कोई चीज है जो कट हो सकती है? P4 प्रोडक्ट में नहीं है तो ये कट नहीं हो सकता. वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोडक्ट में नहीं है, हम इसे भी कट नहीं करेंगे. हाइड्रोजन आयंस रिएक्टेंट में भी प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में भी, लेकिन इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं है. कट करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए. दोनों ही तरफ H+ है तो हम इसे कट कर सकते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग रहेगा वो हम रखेंगे. कैसे? 36H+ आयन हमारे प्रोडक्ट में है और 24H+ हमारे रिएक्टेंट में है. दोनों को लेस करें, पीछे बच गए 12H+ आयन्स. कहाँ बचेंगे? प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि वहां ज्यादा है. तो हम रिएक्टेंट के 24 कट कर देते हैं, प्रोडक्ट में 36 कट करके लिख देंगे 12H+. क्योंकि 36 में से 24 कट हो गए, रिमेनिंग 12 हमने यहां लिख दिए हैं. नाउ लेट्स रीराइट द रिएक्शन showing the changes. 5P4 plus 24H2O. अब ना H+ है ना ही इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्ट एरो बनेगा. 12HPO2 माइनस प्लस 36 में से 24H+ लेस हो गए थे, रिमेनिंग 12H+ आयंस प्लस 8PH3. और कोई चीज हमारे पास रिमेनिंग नहीं रही है. नाउ
if the reaction is in acidic medium, we have already completed the balancing. अगर आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो आपकी ये बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक ही हमारे स्टेप्स हैं जिससे हम एसिडिक मीडियम की किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बट इफ द रिएक्शन इज गिवन इन बेसिक मीडियम, देन वी हैव टू फॉलो फ्यू मोर स्टेप्स। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो कुछ स्टेप्स हम और फॉलो करेंगे। कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक मीडियम में? देखो बेटा, नॉर्मली आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में। लेकिन अगर सपोज ये गिवन नहीं है तो आप रिएक्शन को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। आपको रिएक्टेंट साइड में कोई बेसिक पार्ट मिलेगा जो इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। जैसे अगर हम इसी रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास स्टार्टिंग में रिएक्शन थी P4 माइनस प्लस OH माइनस गिव्स PH3 प्लस HPO2 माइनस। इस रिएक्शन के रिएक्टेंट पार्ट को केयरफुली ऑब्जर्व करो, उसमें एक OH माइनस लिखा है जो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है। अगर यहाँ H प्लस होता तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है मीडियम रिएक्शन का तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब हम वो स्टेप समझेंगे जो एक बेसिक मीडियम की रिएक्शन में अब आगे फॉलो करने हैं। बेसिक मीडियम की रिएक्शन के लिए यहाँ तक के स्टेप्स इसी तरह से फॉलो होंगे, केवल इसके बाद कुछ स्टेप्स और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। ये हमारी लास्ट रिएक्शन जहां हमने कहा था कि एसिडिक मीडियम के लिए यहाँ तक ही हमें बैलेंस करना है, पर क्योंकि हमारी रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। एंड दीज स्टेप्स आर ओनली फॉर बेसिक मीडियम। The reactions taking place in basic medium will be followed by these steps only. सबसे पहले हम देखेंगे हमारी रिएक्शन में कितने H प्लस आयंस प्रेजेंट हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो चाहे प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट में कोई हाइड्रोजन आयंस नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में 12 हाइड्रोजन आयंस हैं। हमारी कंप्लीट रिएक्शन में कहीं भी अगर H प्लस आयंस रिमेनिंग है तो वो प्रोबेबली बेसिक मीडियम की रिएक्शन ही होगी। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम OH माइनस आयंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तक हमने जो भी चीजें ऐड की है या तो रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में, पहली बार ऐसा होगा कि हम OH माइनस आयंस डालेंगे, लेकिन दोनों डायरेक्शंस में। जितने रिएक्टेंट साइड में उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी ऐड करेंगे। और कितने करेंगे? जितने H प्लस है। अगर 12 H प्लस है तो 12 OH माइनस आयन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ऐड करेंगे। तो हमारे पास 12 H प्लस है, हम 12 OH माइनस आयंस ऐड कर देते हैं रिएक्टेंट साइड में, और सिमिलरली 12 OH माइनस आयंस ऐड कर देंगे प्रोडक्ट साइड में। हमने OH माइनस आयंस दोनों तरफ ऐड कर दिए हैं, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। अब नेक्स्ट स्टेप, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जहां भी H और OH दोनों प्रेजेंट हो उन्हें आपस में ऐड करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। रिएक्टेंट में केवल OH है, H प्लस आयंस नहीं है, तो यहाँ हम कोई चेंज नहीं करेंगे। 5P4 प्लस 24 H2O प्लस 12 OH माइनस, कोई चेंज नहीं किया क्योंकि H प्लस नहीं थे। प्रोडक्ट में 12 HPO2 माइनस प्लस 8 PH3
प्लस। प्रोडक्ट में हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, H प्लस और OH माइनस आयन, तो दोनों को ऐड करके हम वाटर बनाएंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे? एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। 1 + 1 gives 1 water molecule, but we are having 12, so 12 + 12 gives 12 water molecules. दोनों मिलकर हमें 12 molecules of water देंगे। फिर से समझ लीजिए, 1 हाइड्रोजन आयन with 1 hydroxide ion gives 1 water molecule. If 2 hydrogen ions are there and 2 hydroxide ions are there, we get 2 water molecule. Similarly, 12 hydrogen ions and 12 OH minus ions will give 12 water molecule. जितने हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। आप इन्हें डबल प्लस करके डबल नहीं करेंगे। फिर से एक बार चेक करेंगे, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई चीज कॉमन है जिसे हम कट कर सकते हैं? P4 is not there in product side, so we can't cut it. Water molecules 24 in reactant and 12 in product. 24 हमारे पास है रिएक्टेंट साइड में और 12 है प्रोडक्ट में। माइनस करें, 24 minus 12, 24 minus 12 that is 12 water molecules are remaining. उस तरफ लिखेंगे जहां ज्यादा है, जहां कम है वो सारे कट हो जाएंगे, ज्यादा वाली साइड में रिमेनिंग रहेंगे। सो वी कट 24 एंड रिमेनिंग इज 12 वाटर मॉलिक्यूल, जबकि यहाँ पूरे 12 कट हो जाएंगे। 12 से 12 कट हो गया, बचे हुए 12 हमने लिख दिए। नाउ व्हाट द नेक्स्ट? वी रीराइट द रिमेनिंग थिंग्स। 5P4 plus 12H2O plus 12 OH minus, which gives 12HPO2 minus plus 8PS3 and nothing is there. वाटर कट हो गया है, अब कुछ भी नहीं रहा, तो ये हमने रीराइट कर दिया रिएक्शन को। और आप देखेंगे कि OH माइनस आयन जो रिएक्शन में गिवन था स्टार्टिंग में, हमने उसे कहीं भी बैलेंसिंग में यूज नहीं किया, फिर भी वो फिर से शो हो रहा है। तो इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से बैलेंस होकर आ जाएगा। नाउ लेट अस चेक द रिएक्शन वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। ये हमारा लास्ट स्टेप था जो एक बेसिक मीडियम की रिएक्शन की बैलेंसिंग में होता है। तो हम दो तरह से चेक करेंगे। पहला, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल है या नहीं, और दूसरा चार्जेस। So first of all, I am writing number of atoms of every element. P4, 20 P4, 5 4s are 20. 20 P4 is there. Hydrogen, 12 2s are 24 और 12 हाइड्रोजन हमारे पास OH में है। 24 और 12 टोटल 36 हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोजन इज देयर। Oxygen 12 and 12, 24 oxygen ions are there. So we having 20 phosphorus, 36 hydrogen and oxygen, 24 in the reactant side. We have counted all the things. Now come to the product. 12 phosphorus and 8 phosphorus. 12 plus 8, total 20 phosphorus. Hydrogen, 12 hydrogen and 8 3s are 24. 24 plus 12, total 36 hydrogen ions are there. And last, oxygen, 12 2s are 24. 24 oxygen ions in product. Let us check. 20 phosphorus in reactant and 20 phosphorus in product. 36 hydrogen ions in reactant and 36 in product, and 24 oxygen ions are in reactant and 24 in product. So all the number of atoms for every element are equal in reactant and product side. And at last, check the charges. Phosphorus is having 0 charge,
because neutral molecule multiplied by 5 0. Again water is neutral, power में 0 है और आगे 12 है तो it is 0 charge for water also. OH -1 चार्ज है 1 मॉलिक्यूल का और 12 मॉलिक्यूल्स है तो टोटल चार्ज -12. Again PHPO2 -1 for 1 molecule and 12 it is -12. And PH3 पर चार्ज न्यूट्रल है और 0 multiplied by 8 is equals to 0. Let us take a sum for reactant and product individually. It is -12 for product and -12 for reactant. If the charges are same in reactant side as well as in product side, the number of atoms are same in reactant side as well as in product side, that means the reaction has been balanced. So this is the process to balance a redox reaction using ion electron method. Hope you are able to understand all the steps and you can balance reactions by your own. I am giving you few reactions for your practice. If you have any doubt or any problem regarding balancing, you can message me. We will make one more video for balancing redox reaction using ion electron method for some other reaction. Thank you for watching video carefully and for trying to balance a redox reaction. In our next video, we will continue with the oxidation number method of balancing.